Hello everyone, welcome to our channel. In this series of NCERT book summaries, we are going to cover all the books of history, political science, economics, geography and environment from class 6 to class 12. And we have started with political science book of class 6, that is Social and Political Life part 1. And in this video we are going to cover chapter number 4 of this book, that is Key Elements of Democratic Government. So this is my introduction. I am Atul Yadav. I pursued BTech from NIT, currently working as an engineer under Government of India, and I have been teaching for last 6 years. So before starting today's topic, we must understand some key points. First, democracy. What a democracy is all about. So democracy means government elected by people, and as per Abraham Lincoln's definition, it is a government of the people, by the people and for the people. So in a democracy, what are the things which are guaranteed? That is, first of all, justice to all. Justice can be of three types. Social, in the form of removing of discrimination, any kind of discrimination on the basis of caste, creed, race, religion, gender, and removing of untouchability. These all are guaranteed in our fundamental rights in the constitution. And political justice in the form of free, fair and regular elections. इसके बारे में आगे हम देखेंगे. Second, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, और इक्वल पार्टिसिपेशन इसी में आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी को वोट देने का अधिकार. थर्ड इज इकोनॉमिक जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब. सिमिलरली इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क. दीज ऑल आर इकोनॉमिक. सेकेंड इज इक्वलिटी. इक्वलिटी जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स पार्ट में डिफाइन किया गया आर्टिकल 14 में, equality before law, all are equal in the eyes of law. There will be no discrimination mentioned as in article 15. ऐसी article 16, 17 में untouchability को legally abolish किया गया है. Third is liberty, liberty of thoughts, belief, faith and worship as per preamble. आप कोई भी धर्म, कोई भी faith फॉलो कर सकते हैं. Freedom of speech and expression, and to all these elections, free, fair and regular elections are required to achieve all the justice, equality, liberty and freedom. So आगे देखेंगे. Let's start today's topic, that is key elements of democratic government. So what are the key elements that influences working of a democratic government? First is people's participation. How people participate? In the form of elections, in the form of expressing their views about decisions of government. Second is resolution of conflicts. Democratic government has the responsibility to resolve the conflicts between any two states or between group of people. The conflicts may be due to various reasons. जैसे दो स्टेट्स के बीच में आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे कैसे conflicts होते हैं. ऐसी similarly among group of peoples के बीच में due to religious diversity and due to discrimination in providing the public facilities होता है. तो उसकी उन सब conflicts को resolve करने की and law and order को maintain करने की जो responsibility है वो democratic government की होती है. Third is to achieve equality and justice. By now हम एक केस स्टडी करते हैं of South Africa. Before 1994, South Africa was governed by a law called apartheid law. But before that we understand that why that law was existing there. अफ्रीका में multiple races exist करती हैं. Black people who are native of Africa, white who came to settle there from Europe, and Indians who came as laborer or trader. लेकिन ड्यू टू अफ्रीका क्या था, कॉलोनी था यूरोप का की, तो वहाँ पे अपार्थेड लॉ एग्जिस्ट करता था. अपार्थेड लॉ इज सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस. रेस के बीच रेसेस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था. वहाँ कैसा कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता था? जो नॉन वाइट, वो आर नॉट वाइट, उनको मिंगल नहीं करने दिया जाता था, मतलब
मिक्सअप नहीं कर सकते थे वाइट पीपल के साथ, मतलब शादी नहीं कर सकते थे, आना जाना नहीं, कोई सोशल रिलेशंस नहीं किसी भी तरह के। ऐसे ही दे कांट लिव नियर टू वाइट पीपल, दे कांट यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़, दोनों के लिए अलग अलग थी। जैसे ब्लैक के लिए डिफरेंट वर्स्ट फैसिलिटीज़ थी और वाइट पीपल के लिए बेस्ट, इवन दो ब्लैक आर द नेटिव्स साउथ अफ्रीका। सो डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे होता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेपरेट हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंसेस, देयर वाज अ ह्यूज पार्शियलिटी, जो वाइट पीपल थे उनके लिए बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी और जो ब्लैक थे उनके लिए नो फैसिलिटीज़ एट ऑल। सेपरेट बस ट्रेन थी, बस स्टॉप भी अलग अलग थे, नो वोटिंग राइट, ओनली वाइट कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरीके से था कि जो बेस्ट लैंड होता था वो वाइट पीपल को दिया जाता और जो वर्स्ट होता था जिस पे खेती नहीं हो सकती, जिसमें अच्छे से घर भी नहीं बन सकते, वो ब्लैक पीपल दिया जाता था। ब्लैक पीपल वर ऑल्सो फोर्स्ड टू लर्न लैंग्वेज ऑफ वाइट पीपल। नाउ इन सब डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट और अपार्थाइड लॉ के अगेंस्ट देयर वाज अ origin of anti-national congress that was led by group of people against, and उसमें सबसे बड़ी लीडर उभर के आए नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन, ज़्यादातर लाइफ उन्होंने जेल में काटी, बट ही वॉज द स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। ही फॉट अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द पाथ ऑफ अहिंसा and got succeeded in 1994 when Africa became a democracy. South Africa became and Nelson Mandela was elected as first president of democratic South. So a long fight against discrimination was fought by Nelson Mandela and in African National Congress. Now, among the key elements of democratic government, first is participation. Participation is must because it is the basic key element of any democracy, because democratic government nothing without participation, and in that participation the key in a democracy we elect leaders who are responsible to make government. It is assumed that they will keep in mind the voice and interest of the people, but what will happen, elections are not regular. अगर elections regular नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर unlimited power आ जाएगी, unlimited representatives with unlimited power, और उससे क्या होगा, there is a risk of misuse of power, और as a result there is a risk to democracy or democracy may be. So regular elections are must for any democracy to have. This part of government. Second, people sense their power of democracy in खुद एक तरह से डेमोक्रेसी में क्या पावर है एक इंडिविजुअल की, उसका एहसास होता है। और थर्ड, पीपल कैन चेंज देयर लीडर। सो रेगुलर इलेक्शंस आर मस्ट इन एनी डेमोक्रेसी, ड्यू टू which the strengthened and strong democratic character of government arose. और क्या क्या वेज हो सकते हैं पार्टिसिपेशन के, जैसे टेकिंग इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइजिंग इट वेन एवर रिक्वायर्ड। कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हम अपने मत रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रैलीज, सिग्नेचर कैंपेन एट्सेट्रा। And government has to change the decision if required, because government is responsible to people of the. ऐसे ही by expressing views to make government understand what action they should take, हम अपने मत रख सकते हैं या सजेशंस दे सकते हैं। जैसे अभी करंटली थिंक टैंक बनाया गया है जिसमें हम अपने सजेशंस, जो भी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बनाना चाहती है उसके लिए हम अपने सजेशंस दे सकते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उन सब सजेशंस को एक्टिवली लेती है और उन सब को इन्वॉल्व करती है वाइल टेकिंग एनी डिसीजन। सो वी कैन एक्सप्रेस व्यूज इन द फॉर्म ऑफ धरना, स्ट्राइक, मीडिया कैंपेन, एंड
आजकल बहुत चलन में है सोशल मीडिया कैंपेन। द क्वेश्चन इज, डू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एबल टू पार्टिसिपेट? क्या सारे सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं वो इस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाते हैं? द आंसर इज, देयर आर मैनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस वे। जैसे कि ट्राइबल एरियाज़ हो गए या इंटीरियर और भी एरियाज़ होते हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन। सो इसके लिए क्या होता है कि वहाँ पे सोशल मूवमेंट्स होते हैं। सो पार्टिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स टू चैलेंज गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, एंड governments are forced to change their decision. The second key element is to resolve conflict. So why there is a need to resolve any conflicts? Why there is a need of any government? So all the authority, all the power is given to the representatives of the people, and those representatives form government. So indirectly all the power is in the hands of government. So they can, using that authority, resolve the conflict. So by using basic rule of land, that is constitution के according ही जो भी conflicts हैं उनका solution निकाला जाएगा। So first कैसे conflicts हो सकते हैं? Conflict between state, जैसे एक एग्जांपल हम अभी लेंगे, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो इसमें क्या है कि दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में conflict है ड्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ कावेरी रिवर। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लेइंग की रोल इन प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहले देख लेते हैं कि कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। कावेरी रिवर जो है ये ऐसे समझ लेते हैं कि ये रिवर ये कर्नाटका से तमिलनाडु की तरफ जाती है, कर्नाटका से तमिलनाडु की तरफ जाती है। कर्नाटका ने एक डैम बनाया हुआ है जिसका नाम है कृष्णा राजा सागर डैम, टू प्रोवाइड इरिगेशन वाटर फॉर देयर फार्मर्स एंड टू प्रोवाइड वाटर फॉर बेंगलुरु सिटी। उसके लिए उन्होंने डैम बनाया हुआ है एंड ऑब्वियसली फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद तमिलनाडु ने भी एक डैम बनाया हुआ है जिसका नाम है मेट्टूर डैम। अब कन्फ्लिक्ट क्या है कि कर्नाटका सफिशिएंट वाटर एज पर एग्रीमेंट तमिलनाडु को रिलीज नहीं कर। उसमें कर्नाटका की भी मजबूरी है, बिकॉज देयर इज नॉट मच सफिशिएंट वाटर इन दिस रिवर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की ही खुद की जो नीड्स हैं फॉर इरिगेशन फॉर बेंगलुरु सिटी वो ही फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। वो तमिलनाडु को उतना पानी नहीं देता है जितना उसको देना चाहिए। तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में अब बहुत लंबे समय से एक कन्फ्लिक्ट बनी हुई। नाउ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट्स को एक साथ बिठाकर उनके कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें इन द वे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर 100 लीटर्स ऑफ, एक एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट, 100 लीटर्स ऑफ वाटर है तो उसको जितनी रिक्वायरमेंट और टोटल रिक्वायरमेंट है मान लो 200 लीटर की, बट 100 लीटर ही अवेलेबल है तो इसको 50-50 रेशियो में या जो भी फिजिबल रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि दोनों को थोड़ा थोड़ा पानी मिल सके। बट द डिस्प्यूट इज स्टिल गोइंग ऑन। नेक्स्ट, कन्फ्लिक्ट्स अमंग ग्रुप ऑफ पीपल ड्यूरिंग द रिलीजियस प्रोसेसन, जैसे कि जुलूस निकाले जाते हैं हिंदूज द्वारा या मुस्लिम्स द्वारा, तो उस समय पे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स कभी कभी हो जाते हैं, तो उनको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? एंड देयर इज़ अ रोल, ह्यूज रोल ऑफ पुलिस। सो पुलिस इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, पुलिस इज़ पार्ट ऑफ स्टेट। स्टेट की अगर डेफिनेशन आपको शायद याद हो, हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। सो पुलिस क्या है? स्टेट है। वाई? बिकॉज पुलिस हैज़ अथॉरिटीज़, वेरियस अथॉरिटीज़। सो whoever the institution or a body having authority is a state. Secondly, कब conflict develop होती है? When a group of people feel discriminated among due to uneven distribution of public facilities का uneven distribution है। जैसे हॉस्पिटल में जाएं तो अमीरों के लिए अच्छा ट्रीटमेंट है, गरीबों के लिए ट्रीटमेंट नहीं है।
ऐसे ही जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे रोड या फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन, उसमें कोई किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो गरीब हैं या जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे बेटर इलेक्ट्रिसिटी या रोड फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इस ऐसे में कुछ कन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो सकती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। नाउ ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट्स वायलेंस में, और ये वायलेंस कौन अडॉप्ट करता है? पीपल हु आर इन। सो इस वायलेंस की वजह से क्या होता है, जो अदर और लोग हैं उनके बीच में फियर या टेंशन क्रिएट हो जाता है, एंड ऐसे में जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन द लॉ एंड थर्ड की एलिमेंट इज इक्वालिटी एंड जस्टिस, प्रोवाइड justice to all to achieve equality. We can say that justice and equality are inseparable, because without achieving providing justice, equality can't be achieved. So justice can only be achieved when people are treated equally. So does government recognize this? Answer is yes. Government recognize this and make special provision for people who are unequal, जैसे कि in the form of reservation या special law for disables, special reservation for disabled, या for women's के लिए special reservation in various job, even representation, जो हम representation है जैसे लोकल लेवल पर 33% रिजर्वेशन है, बट स्टिल वुमेन आर फाइटिंग फॉर रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट। नाउ स्पेशल प्रोविजंस फॉर कुछ और भी दिए जाते हैं, फॉर दैट ट्रीटिंग अनइक्वली टू अचीव इक्विटी, जैसे आर्टिकल 15.3 इज रिगार्डिंग रिजर्वेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि वी हैव टू समटाइम्स ट्रीट अनइक्वली टू अचीव इक्वलिटी। इक्वलिटी अचीव करने के लिए हमें कभी कभी लोगों को अनइक्वल ट्रीट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हु आर बैकवर्ड, हु आर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल ऑफ अवर कंट्री, दे आर डिप गुड एजुकेशन, गुड फैसिलिटीज़ फॉर लाइफ फॉर लॉन्ग ईयर्स। हमारे यहाँ जो शेड्यूल कास्ट में हैं, सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको बहुत सालों से बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से दे आर बैकवर्ड, एंड सो टू अपलिफ्ट दोज क्लासेस देयर इज़ अ प्रोविज़न इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजर्वेशन। एंड रिजर्वेशन का मतलब है कि वी आर ट्रीटिंग अनइक्वल, हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को रिजर्वेशन दे रहे हैं, दैट इज़ वी आर ट्रीटिंग अनइक्वली, बट दिस इज़ द वे बाय विच वी कैन अचीव इक्वालिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं स्पेशल प्रोविजंस का, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था कि गर्ल्स एंड बॉयज़ आर ट्रीटेड अनइक्वली, सो देयर इज अनजस्टिस टू गर्ल। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशल प्रोविज़न इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स या लॉन्च किए। उस जैसे फॉर एग्जांपल नो फी इन स्कूल, और कुछ स्टेट्स में जैसे साइकिल देते हैं लड़कियों को ताकि वो स्कूल जा पाएँ, सीनियर स्कूल या कॉलेज की जो गर्ल्स होती हैं। सो टू प्रमोट equal education to girls. Similarly, some states provide financial assistance for the marriages of girls. So these are the special provisions which are provided by government. Now, to summarize this topic, key elements are participation in the form of elections, in the form of expressing our views and participating in the working of government, resolving the conflicts among various groups of the people, achieving equality by doing. So responsibility of a government is to provide justice to achieve equality, and government must be responsible people of country. So to achieve equality, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं विच आर गारंटीड, जैसे कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल आर ट्रीटेड इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ।
आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ऐसी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ। सो लास्ट में हम एक क्वेश्चन कवर करते हैं, व्हाई डू वी थिंक वी नीड अ गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ मैनी डिस्प्यूट्स, और क्या वाकई में सरकार की हमेशा ज़रूरत होती है रिजॉल्व एनी कन्फ्लिक्ट? द आंसर इज इन माइनर group of people who are in conflict or any states who are in conflict can resolve their issues, but in major जैसे minor they can be resolved by mutual consent, लेकिन कुछ major conflicts होते which are affect larger section of society, then government resolve the dispute, और because क्यों गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए? अथॉरिटी इज विद, दे आर ऑथराइज्ड बाय द पीपल टू रिजॉल्व द, वी हैव मेड देम अथॉरिटी और स्टेट, दे आर रेस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रो जस्टिस टू ऑल एज पर DPSP, ये DPSP मेंशन। थर्ड, और ऑल्सो कि जस्टिस में जो फंडामेंटल राइट्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर गारंटीड अगेंस्ट स्टेट, दैट मीन्स स्टेट शैल प्रोवाइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स, दे आर गारंटीड अगेंस्ट स्टेट, और स्टेट में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इफ़ यू वांट टू नो द व्हाट इज स्टेट इज, प्लीज़ गो थ्रू द लास्ट वीडियो। थर्ड इज पावर इज इन द हैंड ऑफ स्टेट, जो टोटल पावर है, पावर इज डेलीगेटेड या ट्रांसफर टू गवर्नमेंट बाय द पीपल ड्यूरिंग इलेक्शंस के टाइम पर हम क्या करते हैं, अपनी पावर कुछ चुनिंदा जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके हाथ में दे देते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड जस्टिस। पावर इसमें एग्जीक्यूटिव और लीगल दोनों पावर होती हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे जुडिशरी टू जस्टिस। सो दिस इज all in this video. If you liked the video, please hit the like button and also subscribe the channel for more videos, and also share this video, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। थैंक यू।